Before going to start the questions, I want to remind you the formulas which you did in the previous classes. So here is a column. 3 columns are given in this table, and we need to match the figures with the formulas given here. Okay, these are all formulas of area. So first figure is a rectangle. So rectangle का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. सो लेंथ क्या है? b और ब्रेथ क्या है? a. सो a इंटू b या b इंटू a जहाँ पे भी दिखे, we will match that. So this is the match of rectangle area. And second is square. So square का क्या होता है? Side into side. So a है इसकी side, so a into a. So this will be the area of square. Then rectangle. So rectangle का क्या होता है? Half into base into height. So this is the formula for area of triangle, half into base into height. And now we have a parallelogram. So we are given with base and height. So parallelogram का area क्या होता है? Base into height. And last one is a circle with radius b. ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर रेडियस होता है, लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या है? बी है. सो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई बी स्क्वायर. Today we are going to do exercise 11.1, question number 1, which is a square and a rectangular field with the measurement are given in the figure have same perimeter. So here are the two figures, figure A and figure B, but in both स्क्वायर में तो हमें पता होता है कि सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल. सो 60, ये भी 60, ये भी 60, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 60. बट हेयर in the second figure, which is a rectangle, we are not given with the breadth. So we need to find that, but we are given with the condition that perimeter of both the figures is equal. So we use that simply, and we write the perimeter of figure A, which is a square. So square का क्या होता है perimeter? 4 into side. ठीक है, 4 into side यूज़ करके 240 मीटर ये हमारे पास आ जाएगा 4 into 60 से. ठीक है, देन वी विल डू पेरीमीटर ऑफ फिगर बी. तो फिगर बी क्या है? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का होता है 2 into length plus breadth. So at the end what we will do is we use the condition given in the question, which is the perimeter of both the figures A and B are equal. So हमने ये यूज़ कर ली. इसको यूज़ करके हमने दोनों का पैरीमीटर्स ये वाला और ये वाला इक्वल लिख दिया. ठीक है, इक्वल लिख के हमने लेंथ की वैल्यू पुट करनी है, और ब्रेड्थ हमने, क्योंकि हमें पता नहीं है इसकी ब्रेड्थ क्या है, सो हम इसको फाइंड करेंगे. 2 into 80 plus b is equal to 240 हमारे पास आ गया. अब हम यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है इन द लेफ्ट हैंड साइड. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 2 240 से हो जाएगा डिवाइड. ठीक है, एंड इट विल गेट 120. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 120 आ जाएगा, और साथ में हमारे पास 80 प्लस b रह जाएगा. ठीक है, 80 प्लस बी के बाद अब हमने देखा कि ये जो 80 है ये क्या कर रहा है? इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस है. ठीक है, प्लस हो रहा है. सो जब हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, देन इट विल गेट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 120 एंड वी विल गेट 40 मीटर एज ब्रेड्थ. सो नाउ वी विल फाइंड द एरिया. एरिया फाइंड करने के लिए फर्स्ट फिगर का एरिया साइड स्क्वायर मीन्स साइड इनटू साइड. सो 60 into 60 we will get 3600 and मीटर स्क्वायर. एंड फिगर वी का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो 80 into 40 we will get 3200 मीटर स्क्वायर. सो विच वन इज़ लार्जर या longer? So this one is
longer 3600 is more than 3200. So figure A is A has more area. Next question is, Mrs. Kaushik has a square plot with measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees 55 per meter square. So here is the diagram. A plot which is in the form of a square has same sides, ठीक है. तो उसके अंदर उसने Mrs. Kaushik, she wants to build a house which is in the form of a rectangle, and rectangle has length and breadth. So now जो बचा हुआ portion है ये वाला, in this she want to make a garden, and cost of developing a garden per meter square is 55. So we need to find the total cost. So firstly हमें ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला एरिया सिर्फ गार्डन का, ठीक है. तो ये आएगा कैसे, जब हम इस पूरे एरिया से इस अंदर वाले एरिया को कम कर देंगे, देन वी विल लेफ्ट विथ दिस एरिया. सो ये हम करेंगे फाइंड आउट करके एरियाज. अब हम सबसे पहले प्लॉट का एरिया फाइंड कर लेते हैं. प्लॉट किस फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड. सो साइड कितनी है 25, तो 25 इंटू 25 625 मीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ हाउस कैसे आएगा, बिकॉज हाउस इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल. सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज 20, breadth is 15, so 20 into 15 300 meter square. Now we will subtract the area of house from area of plot, ठीक है. ये हम एरिया किसका फाइंड कर रहे हैं, गार्डन का, ठीक है. इस गार्डन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें बाहर वाले एरिया से इस हाउस का एरिया कम करना पड़ेगा, और हम ऐसा ही करेंगे. और हमारे पास 625 में से 300 कम करके 325 रह जाएगा, ठीक है. फिर इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमने अब फाइंड करना है. तो कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 55. सो कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 55 इंटू 325. सिंपल. We will get 17,875 rupees. In the next question we are given with the garden जो मिडल से कैसा है, रेक्टेंगल की शेप में, और उसके दोनों जो एंड्स हैं वो क्या है, सेमी सर्कुलर, ठीक है. और इन सर्कल की डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर, और ये पूरी लेंथ जो है वो 20 मीटर है, ठीक है. और एट द एंड यहाँ पे क्या है, एक हिंट भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5. सो फर्स्टली जो लास्ट स्टेटमेंट है हम इसको यूज़ करके इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेंगे और हमारे पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है. और हमें करना क्या है, एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने हैं इस गार्डन के, ठीक है. 3.5 और 3.5 ऐड करके 7 आता है, ठीक है. 20 माइनस 7 13. सो 13 तो आ गई हमारी लेंथ, ठीक है. और ब्रेड्थ कितनी है ये वाली, तो ये 7 है, ठीक है. 7 लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है रेक्टेंगल का, ठीक है. क्योंकि एरिया हम ऐसे फाइंड नहीं कर पाएंगे सारे का एक साथ, तो हमें इसको पार्ट्स में फाइंड करना पड़ेगा, रेक्टेंगल और सर्कल का, ठीक है. तो पहले हम रेक्टेंगल का करेंगे. तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 13 7 91 मीटर स्क्वायर. अब आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे दोनों सर्कल्स कैसे हैं, हाफ हैं, ठीक है. तो एक सेमी सर्कल का क्या आ जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है. हाफ पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें दो का एक साथ फाइंड करना है, इसलिए 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर. सो
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये हाफ सर्कल दोनों तरफ से मिलके क्या बन जाएगा, एक फुल सर्कल। तो एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर ही रह गया। तो अब ये जो आर है इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, आर रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस 7/2 और 7/2 मल्टीप्लाई करके हमारे पास एट द एंड एक 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये वाला 7 इसके साथ कैंसिल, और हमारे पास 77, ये 2 से 2 11 ज़ा 22 और 11 7 ज़ा 77/2 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, लेकिन अब टोटल एरिया फाइंड करेंगे हम, तो सॉरी ये सर्कुलर एंड्स का एरिया था, तो अब हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगल प्लस 2 एंड्स, 2 सर्कुलर एंड्स का एरिया कितना हो जाएगा, 91 प्लस 38.5 मीटर स्क्वायर, 129.5 मीटर स्क्वायर, ये टोटल हो गया। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन, एक पार्ट तो कर लिया है क्वेश्चन का, अब हमने पेरीमीटर करना है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, जो आउटलाइन है उसकी लेंथ। ठीक है, तो अब हमने ये वाली इंक्लूड नहीं करनी है, जो हमने ये गिवन है लाइंस, ये नहीं होंगी इसमें। ठीक है, ये काउंट नहीं करनी है, तो ये इनको कैसे छोड़ेंगे हम, वो देखना है। टोटल पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ 2 एंड्स। ठीक है, पेरीमीटर को सर्कल के केस में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो वो तो हमने लिख दिया। उसके बाद क्योंकि जो आपका पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे एक सर्कल हाफ है, दूसरा भी हाफ है, तो सेमी सर्कल का कितना होता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसलिए पाई आर। ठीक है, लेकिन 2 क्यों किया है मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 हैं हमारे पास सेमी सर्कल, ये 2 हैं। ठीक है, तो 2 एंड में 2 पाई आर ही बन जाएगा ये, क्योंकि ये कंप्लीट होके क्या बन रहा है, दोनों सर्कल एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जब हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो जब हमने हाफ सर्कल का किया तो हमारे पास इस लाइन का भी काउंट हो गया। ठीक है, जो हमें नहीं करना है, इसलिए हमने क्या किया, अब ये जो लाइन है ये क्या है, ये है डायमीटर की वैल्यू। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। ठीक है, 2r, तो यहाँ पे 2r इंटू 2, क्योंकि 2 लाइन्स हैं इसलिए 2 इंटू 2r को हमने माइनस कर दिया इससे। ठीक है, ताकि इनको हम नेगलेक्ट कर दें, इस सिर्फ इस आउटर जो आउटलाइन है उसका ही हमारे पास पेरीमीटर, उसकी ही वैल्यू इंक्लूड हो। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास r की वैल्यू मैंने बताया था 7/2 हमने लेनी है, तो वो पुट कर दी, 2 2 ज़ा 4, और बाकी वैल्यूज़ भी वैसे ही पुट कर दी, और पुट करके इनको सॉल्व कर लिया। ठीक है, 7 से 7 2 11 ज़ा 22, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो सब कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 40 प्लस 22 माइनस 14, एंड we will get 48 meter at the end. If you like the video, please press the like button and also press the subscribe button to see the video updates.